السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم مہنگائی کی بات کریں گے کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، پیٹرول 3 روپے مہنگا ہو گیا ہے اور اس سب کا یقیناً جو باقی اشیاء ہیں ان پر بھی اس کا ایفیکٹ آئے گا۔ گورنمنٹ یہی کہتی آ رہی ہے، ہمیں احساس ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی کو کم کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کو مختلف پروگرامز کے ذریعے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحت کارڈ پہ بہت زیادہ زور ہے آج کل گورنمنٹ کا۔ آج بھی فواد چودھری صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحت کارڈ کی بات کی، پھر اس کے علاوہ شہباز گل صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور شیخ رشید صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ یہی ہوتا ہے، روزانہ پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، ہر کوئی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرتا ہے، ساتھ میں حاضریاں بھی لگتی ہیں اور پھر دوسری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، جو کہ اس طرح سے تو نہیں آیا جتنا آج حکومتی وزراء نے پریس کانفرنسز کی۔ لیکن بہرحال مہنگائی کا جو ایشو ہے وہ بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہے، لوگ اس کو لے کر پریشان ہیں اور یہ کیا حکومت کے لیے نقصان کا باعث اس حد تک بنے گا کہ حکومت کو اپنی حکمرانی ہی گنوانی پڑی؟ آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ -1 فارمولے پہ بات ہو رہی ہے، صدارتی نظام پر بات ہو رہی ہے اور آج کے پروگرام میں اپنے معزز مہمانوں سے باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ جی، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار احمد ولید صاحب نے۔ احمد ولید صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار عمران یعقوب خان صاحب نے۔ عمران صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گو کہ عمران خان صاحب تو تنقید کرتے ہیں میڈیا پہ کہ جی آپ جا کر لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ تو یہی کہیں گے مہنگائی ہے، لیکن یہی لوگ، یہی عوام، جب ہم ان سے سن 2008 سے لے کے سن 2018 تک ان کی رائے لیا کرتے تھے، تب ہم جو رائے لیتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی اور اس کو کوٹ بھی کیا جاتا تھا، تو اب ہم اس سلسلے کو کیوں روک دیں؟ عوام سے پوچھنا تو ضروری ہے نا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہو جو کہ جی مہنگائی ہے پر ٹھیک ہے، مجبوری ہے حکومت کی اور حکومت اپنی مجبوری کے تحت کر رہی ہے، شوق سے نہیں کر رہی، لیکن پھر ہم یہی سوچ لے کے جب عوام کے پاس جاتے ہیں کہ آگے سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جواب بھی ملے، کوئی پازیٹیوٹی بھی ملے، عوام کچھ اس بات پر حکومت کو ریلیف دے دے کہ جی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے؟ میں چاہتا ہوں پہلے ہم ذرا یہ سن لیں، پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے تو ان کی پرفارمنس بالکل زیرو ہے، کوئی کام اچھا نہیں کر رہے۔ غریب کے لیے تو یہ غریب تو پیچھے چکا ہے نا مہنگائی کی وجہ سے۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے پی ایم صاحب سے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرے ہمارے ساتھ۔ آنے سے پہلے تو بہت وعدے کی اس نے، مگر آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس حکومت کو رہنا نہیں چاہیے کیونکہ اس حکومت نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، تو عوام کا اس نے جینا پہلے سے ہی بہت زیادہ محال کیا ہوا ہے، پھر پیٹرول بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے حالات اتنے ٹف کر دیے ہیں انسان کے کہ مزدور آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ پیٹرولیم کی مصنوعات یہ ہمارے لیے بنیادی چیز ہیں، اب پھر انہوں نے 3 روپے ریٹ بڑھا دیا ہے، پہلے ہی ریٹ بہت سارے تھے۔ 80 روپے والا پیٹرول 140-50 روپے ہو گیا۔ عوام اتنی تانگ ہو گئی ہے کہ بس عمران خان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس سے حکومت نہیں ہوتی، وہ صاف ہی استعفیٰ دے دے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں ذرا یہ جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں سب، ان کو میں یہ بتا دوں کہ ہم نے اس میں کوئی آپ کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، ہم نے تو خیر نہیں کہا، ہم تو انہی کی کئی بھی بات کو آگے پھر لے کے چلتے ہیں، لیکن یہ جو ساؤنڈ بائٹس ہے یہ سلیکٹیو ساؤنڈ بائٹس نہیں تھے، جس نے جو کہا اس کو ایز اٹ از ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، ایئر کر دیا ہے۔ احمد ولید صاحب، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیا اب لوگ یہ تو پہلے بھی کہتے آئے ہیں، 2008 سے لے کے سن 2018 تک بھی ہم اسی طرح کے جملے عوام سے سنا کرتے تھے، اب بھی سن رہے ہیں، سو گورنمنٹ اور جو حکومتی اراکین ہیں وہ بھی اس کے شاید عادی ہو چکے ہیں کہ جی عوام نے تو کہنا ہوتا ہے، عوام کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا عوام چونکہ کبھی مطمئن ہو نہیں سکتی تو لہٰذا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ اور پھر وہاں پہ فواد چودھری صاحب اپنا وہ مدعا بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں نا جی کتنی ترقی ہو رہی ہے، گاڑیاں کتنی بک رہی ہیں، لوگ کتنے جا رہے ہیں مختلف سیاحتی مقامات پر۔ دیکھیں، عوام جو ہے وہ طے کرتی ہے الیکشن کے دنوں میں، اس سے پہلے وہ برداشت کرتی۔ پاکستان میں خاص طور پہ عوام جو ہیں وہ اس طرح سے مظاہرے نہیں کرتے، پروٹیسٹ نہیں کرتے کہ سڑکوں پہ آ جائیں، روڈز بلاک کر دیں، یہ ٹرینڈ نہیں رہا پاکستان میں۔ دوسرا یہ کہ اپوزیشن بھی کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی کہ ہم کوئی سڑکوں پہ عوام کو لے کے آئیں مہنگائی کے خلاف، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ عوام جو ہے خود ہی متنفر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ مہنگائی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں چاہے کوئی امیر ترین ملک ہو، وہاں بھی اگر مہنگائی جو ہے اس حد تک بڑھ جائے کہ لوگ جو ہیں ان کا جینا مشکل ہو جائے تو پھر حکمران کو جانا پڑتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایکسپیکٹ کرنا کہ عوام اس سے پہلے کچھ کر دیں گے، وہ رسپونڈ کریں گے الیکشن والے دن
यानी उस दिन बताएंगे कि ये जो महंगाई आपने की थी क्या वो हमारे लिए अच्छी थी या बुरी थी, कौन से आपने स्टेप्स लिए थे जो हमारे लिए अच्छे थे या बुरे थे, वो डिसाइड करते हैं। आप आज जाके जरा चेक कर लें, मार्केट में लोगों से, आवाम से बात कर लें, तो उनका जो उसके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा जो है वो इलेक्शन में निकालेंगे। अभी वो निकाल नहीं सकते, अभी वो बेबस हैं। लेकिन हुकूमत जो है उसके पास एक ही चारा है, अभी बचने का कोई इम्कान नहीं लग रहा, लेकिन ये कि कैसे स्टेप्स लिए जाएं कि फौरन 1.5 साल के अंदर महंगाई जो है वो कम होना शुरू हो जाए, जो कि नजर नहीं आ रहा। आप अभी IMF के पास जा रहे हैं और उनकी कड़ी शराइत, जो कि इमरान खान साहब पहले कहते हैं कि जी पहला 1 साल हमें जल्दी चला जाना चाहिए था IMF के पास, तो फिर हमें ये हालात ना देखने पड़ते। शौकत तरीन साहब ने कहा कि जब अभी वजीर नहीं बने थे तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है, इनको फौरी तौर पर IMF के पास जाना चाहिए था। उस वक्त शराइत जो थी आसान थी, नरम थी। अब शराइत जो है मुश्किल के ऊपर आपने एग्रीमेंट किए और वो सारा बर्डन जो है अवाम के ऊपर जाएगा। यानी हुकूमत का जितना निजाम है, जहां से भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो पैसा जो है आपको अवाम से ही लेना पड़ रहा है। अवाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, तो सारा पैसा आपने अवाम से ही इकट्ठा करना है, क्योंकि आपके पास कोई और जराए नहीं है। यानी कोई एक्सपोर्ट्स जो है आपकी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छा कोई आप कारनामा ऐसा अंजाम नहीं दे सके कि आपको एकदम से मुल्क के अंदर पैसा आना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपने अवाम को जितना निचोड़ना है उन्हीं से निचोड़ के आपने पैसा इकट्ठा करना है। उसके बदले में चाहे आप कुछ एक तबका हो खास किस्म का जो गाड़ियां खरीद रहा है, उनको बेनिफिट मिल जाए उसका, कि उसके बेनिफिट से आप ये कहें कि जी गाड़ियां जो है कितनी बढ़ गई, मोटरसाइकिलें कितनी बढ़ गई। तो ये आप यानी कि आपकी नजर में ये अवाम अपना गुस्सा जो है ये अभी नहीं, पहले निकल कर नहीं, बल्कि जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त ये इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। इमरान याकूब साहब, आप भी यही समझते हैं कि जब इलेक्शंस का वक्त आएगा तो तब ये अवाम अपना गुस्सा इलेक्शन में वोट की सूरत में निकालेगी और पहले उससे पहले कुछ नहीं होगा और अवाम तब तक इसी तरह से सहती रहेगी? इमरान साहब जी, इमरान साहब आपको आवाज आ रही है? जी पीजे मीर साहब आपकी तरफ आते हैं। आपको लगता है कि इलेक्शंस तक अवाम जाकर इलेक्शन में रिफ्लेक्शन देगी इस सारे गुस्से का, इस सारी नापसंदीदगी का और इस सारी मुश्किल का जिसमें से अवाम गुजर रही है? अभी ये अवाम उस वक्त ठीक होगी और हम अवाम की बात करेंगे कि जब अवाम भी आपके साथ पार्टिसिपेट करें इन रनिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। हम गरीब का नारा लगा देते हैं, बिल्कुल लगाए गरीब को, लेकिन गरीब को हमने खैराती बना दिया है, लेकिन उसको खुद मुख्तार नहीं बनाया। वो क्यों? आपका एक टैक्सेशन सिस्टम इतना गंदा है, आप अमीर के तो पीछे लगे, मैं कहता हूँ लगाओ दबा के उनको टैक्स करो, हर चीज करो, लेकिन आप गरीब को क्यों नहीं टैक्स करते हो? इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपका वोट बैंक खराब होता है। आप कहते हो नहीं जी गरीब को कर दिया, गरीब पे जाएगा, मर जाएगी। और भाई तुम ग्रेजुअली आज लगाओगे, 25-30 साल के बाद इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। आपने लॉन्ग टर्म में सोचना, आपने एज ए स्टेट सोचना है, ये नहीं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड डे टू डे आपने सोचना है। हमने इस सोच को खत्म करना है, लंबी सोच रखें। लंबी सोच के अंदर आप पाकिस्तान की बेहतरी करोगे। हम आप मुझे बता दो अली, हर प्रोग्राम ले लो, तो गरीब ये हो गया, गरीब गया, अवाम ये होगी, वो अवाम फ्री है और टैक्स देते नहीं है और कहते क्या हर चीज दो। ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना गद्दारी, इन्होंने अपनी जेब से तो पैसा नहीं देना है ना, इन्होंने तो टैक्स का पैसा लगाना है और टैक्स आप देंगे तो आप एक टैक्स में आएंगे, आपको सहूलियत भी मिलेगी। बरतानिया में क्या होता है, आप रहे हैं वहाँ, आपको पता है कि जब आपके पास जॉब भी होती है आप सोशल सिक्योरिटी पे चले जाते हो, आपको एक तो ब्रीदिंग पीरियड मिल जाता है कि आप दूसरा जॉब ढूंढ लो और अगेन फिर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इंश्योरेंस दे देते हो, टैक्स दे देते हो, तो आप एक टैक्स के अंदर आ जाते हो। उसमें क्या होता है, हुकूमतें भी डिसेबल वो आपके लोग डिसएप्लीकेट नहीं होती है और आवाम भी आगे चलती रहती है। और आपको बेस्ट एग्जाम्पल इसका मिलेगा वेल्फेयर स्टेट के अंदर, जहाँ ये सर्वाइव कर गए, इनको एक आम गरीब आदमी भी सर्वाइव कर गया कोविड के दरमियान। हमने क्या किया, क्या प्रॉब्लम आती है वो गरीब को ये दो। अब भाई गरीब को तुम कब गरीब तक रखोगे? गरीब को खुद मुख्तार करो, उसको बोलो हम तुम्हारे हैं। ये नहीं कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए तो गरीब का नारा लग जाता है। ये कब है जब अपोजिशन में गरीब का नारा
गवर्नमेंट में आते हैं तो ऑपोजिशन। बिल्कुल, ये जो आपने अभी कहा पीजे मीर साहब कि जब ऑपोजिशन में है तो गरीब का नारा, इसमें मैं वक्फे के बाद इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी एहतजाज की, जो नासिर बाग से लेके फिर ये माल रोड पर एहतजाज हुआ था अपने ऑपोजिशन के दौर में, तो उसमें क्या कहा था वक्फे के बाद हम सुनाएंगे। इमरान याकूब साहब आपकी तरफ आते हैं जनाब। कुछ देर के लिए तो मुझे ये लगा कि आप प्रोग्राम में से उठ के ऐसे चले गए जैसे परवेज खटक साहब काबीना के इजलास से, लेकिन फिर आप भी वापस आ गए। तो आप भी क्या उठ के उसी मकसद के लिए गए थे जिस मकसद के लिए परवेज खटक साहब गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी माजरत, मुझे आपकी आवाज आना बंद हो गई थी, तो मैं क्योंकि स्काइप पे हूँ आपके साथ, तो मैं फोन के दूसरी तरफ गया था, देखूं कि कहीं डिस्कनेक्शन तो नहीं होगी। बहरहाल वो मामला हो गया, तो मेरा और आपका मामला जो था ना, वो उसी तरह से हुआ जो मामला एक गरीब का इस हुकूमत के साथ है। क्या हुकूमत के साथ, हुकूमत का गरीब को कोई ख्याल नहीं है, हुकूमत का गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है। उसी तरह ये नेट ने मेरा और आपका ताल्लुक खत्म कर दिया था। बहरहाल गुजारिश ये है कि आप जो गरीब की बात कर रहे हैं और आप जो परवेज खटक साहब की बात की, आपने दो तीन चीजें बड़ी अहम है। वैसे तो अहमद वलीद साहब ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन का दिन होता है उस पे वोटर जो है, गरीब आदमी जो है, अवाम जो है, वो बदला लेते हैं। उसकी आपके पास जिंदा और जावेद मिसाल अभी कुछ अर्सा कबल केपी के पहले मरहले में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, आप ये देखें कि जो उनका होम ग्राउंड था, जहां पे वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते थे, वहां पे अवाम ने जो उनके साथ किया है, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि अवाम में उनके बारे में अब क्या राय है, या अवाम महंगाई से कितने तंग या आजिज आ चुके हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, अहमद वलीद साहब, पीजे मीर साहब, सब माशाल्लाह आप बड़े समझदार लोग हैं। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर कोई इजलास की सदारत कर रहे हो पीपल्स पार्टी की, तो यूसुफ रजा गिलानी जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन लीडर हैं, वो जुर्रत कर सकते हैं कि सिगरेट पीने के लिए बाहर चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मियां शहबाज शरीफ अगर मुस्लिम लीग नून के किसी इजलास की सदारत कर रहे हो, तो ख्वाजा साद रफीक या ख्वाजा आसिफ या इवन एहसन इकबाल साहब ये जुर्रत कर सकते हैं कि सिगरेट पीने के बहाने बाहर चले जाएं? भाई हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि अगर किसी को रफा आजत भी महसूस हो तो वो नहीं चाहता कि नहीं कहीं मेरे साहब नाराज ना हो जाए। तो क्या परवेज खटक साहब, अच्छा, इसमें एक सवाल इमरान याकूब साहब ये है कि जो भी अहमद वलीद साहब भी कह रहे थे, पीजे मीर साहब भी कह रहे थे, जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो फिर उस वक्त ये नैरेटिव्स की जंग भी है कि आप अवाम को, और जिस तरह अगर इलेक्शन के करीब आते आते नैरेटिव एक बिल्ड किया जाएगा, जो कि पिछले 3 सालों में भी किया गया कि जी गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे कौमी खजाना खाली था जिसकी वजह से फिर हमें IMF के पास जाना पड़ा, और ये सब उनका किया दर है कि जिसकी वजह से हो रहा है। फिर ये दूसरा मौकफ कि जी वो चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, मुल्क को लूट के मुल्क से पैसा बाहर ले गए। तो एक इस चीज को दबाने के लिए ये जो महंगाई वाला फैक्टर है, और इस पर भी रीजनिंग दे के, लॉजिक देकर कि जी इस वजह से महंगाई हुई है, अपने सपोर्टर्स को क्या दोबारा से अपनी तरफ वो रागिब नहीं कर पाएंगे? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका अली भाई। मुझे ये बताएं कि आप अगर एक सिर्फ इस बात का मुझे जवाब दे दें कि आप कितनी देर तक पिछली हुकूमतों पे डालते रहेंगे? क्या पिछली हुकूमतों की वजह से आपने सारा कुछ ये किया? आपने मान लिया वो लुटेरे थे, आप तो बड़े ईमानदार हैं, तो आपने तो हमें कहा था कि ऐसे पैसे आएंगे बाहर से, हम उनके मुंह के मारे में पैसे और बाकी पैसों से हम तरक्की करेंगे। तो आपकी ईमानदारी में पैसा तो कोई नहीं आया। हम आपकी ईमानदारी को सलाम करते हैं, आपने करप्शन खत्म कर ली। कितने हजार की करप्शन रोजाना होती थी? आप कहते थे कि रोजाना यहाँ इतने हजार अरब रुपए की करप्शन होती है। क्या आपने उनमें से 1,000 अरब रुपया भी कहा कि ये मैंने करप्शन रोक ली है? अगर हम मान लेते हैं कि वो करप्ट थे, वहां करप्शन होती थी, तो फिर आप कम से कम उसमें कुछ तो कमी ले आते, कुछ तो बताते कि जनाब हमने ये करप्शन रोक ली और ये कौमी खजाने में आ गए। लेकिन अगर आप 1 रुपया भी नहीं रोक सके, तो इसका मतलब है या तो फिर आप भी करप्ट हैं और या आप वो झूठ बोलते थे। दूसरी तो कोई चीज नहीं है। लिहाजा ये कहना, देखिए अवाम अब इतने बेवकूफ नहीं है, अवाम को नजर आ रहा है। आपने एक तो महंगाई इतनी कर दी, दूसरा आप देखें डिवैल्यू जो हुआ है सरकारी, उसमें आप चले जाए तो 41% आपने 3 सालों में रुपए को डिवैल्यू कर दिया। 1 रुपया आपका वैसे 59 पैसे रह गया। उसके बाद पेट्रोल की कीमतों का जो हाल हो रहा है, बिजली की कीमतें जिस तरह से आप हर
महीने बढ़ा रहे हैं, तो अवाम देखे बेचारे कितनी देर तक इसको बर्दाश्त करेंगे। और मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि आप याद रखें, जब दुनिया में इनकलाब आते हैं तो ऐसे नहीं आते। ये मान लिया हमने कि हमारी कौम जो है वो, वैसे इमरान याकूब साहब, एक एहतराम के साथ मैं ये बात यहाँ पे कहते चलूं कि मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे यहाँ ऐसी कैफियत, कोई इनकलाबी कैफियत बनेगी। लोग निकलते ही नहीं है, एतराज जरूर करते हैं, अपनी तकलीफ का इजहार जरूर करते हैं, बोलना सीख लिया अवाम ने, माइक्रोफोन पर अपनी बात जरूर कर देते हैं, लेकिन ये इनकलाबी वाली कैफियत नहीं है। अली साहब यहाँ इनकलाब वो नहीं आएगा, लेकिन मुझे डर लगता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर यही हालत रही तो आप देखेंगे लोग सड़कों पे जाते गाड़ियों में रोक कर लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकाल के कहेंगे कि हमारे पास बच्चों के लिए रोटी नहीं है, हमारे पास बच्चों की दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम गाड़ियों में बैठते हो। ये इतनी तबाही में, अल्लाह माफ करे, मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर हालात जिस तरह से जा रहे हैं, लोग ये सड़कों पे हम एक ब्रेक लेने जी, इमरान याकूब साहब एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो इमरान खान साहब का अपोजिशन में जो उनका कहना था महंगाई को लेकर और जो एहतजाजी उन्होंने कॉल भी दी थी, उस पर भी हम बात करेंगे, बल्कि वो साउंड बाइट हम शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। वक्फे पे जाते हुए कहा था कि लौट कर आएंगे तो इमरान खान साहब की जो उस वक्त की राय थी ऑपोजिशन में होते हुए महंगाई को लेकर, वो क्या थी, वो शामिल करेंगे। मैं सारे पाकिस्तानियों को दावत देता हूं पाक में हमारे साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करने की। इसकी वजह कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, इसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तानी अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, इस मुल्क में अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। क्योंकि सारा जो हुकूमत पैसा इकट्ठा करेगी वो गरीबों पर टैक्स लगा के करेगी, महंगाई के जरिए। पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, उनके लिए स्कीमें दी जाती हैं ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। वो टैक्स बचाने के लिए उनके लिए हर तरह तौर तरीके निकाले जाते हैं, क्योंकि जो साहिब इख्तिदार हैं वो खुद टैक्स नहीं देते। इसलिए सारा टैक्स बेचारा गरीब आदमी अपनी खून से अदा करता है। अगर आप इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, या मजीद जुल्म और बढ़ते रहेंगे, या महंगाई और होती रहेगी, छोटा सा तबका अमीर तरीन होता रहेगा, आवाम गरीब होती जाएगी। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सब इस एहतजाज में शामिल हो। ये असल में जहाद है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना मुसलमानों का फर्ज है। बल्कि मैं सबको कहता हूं, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, लेकिन ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो बिजली की कीमतें, डीजल की कीमतें, खाने पीने की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, ये जब तक डीजल की कीमतें, खाने पीने की कीमतें, हक की, इंसाफ की, जहाद की बात की, और इमरान खान साहब ने कहा गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। अहमद वली साहब, कितने खूबसूरत जुमले थे इमरान खान साहब की अपोजिशन में, और कितना लोगों को मोटिवेट किया था। लेकिन एक बात बताऊं, ये ये खिताब के बाद, इस मैसेज के बाद इमरान खान साहब ने जो नासिर बाग से लेकर चेयरिंग क्रॉस तक जो एहतजाज की कॉल दी थी, और यही महंगाई का एहतजाज था, तब मरहूम सैयद मुनव्वर हसन साहब भी उस एहतजाजी ट्रक में इमरान खान साहब के साथ थे। तो वो भी जाकर लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग के पास खत्म हो गया था, और ज्यादा लोग वहां पर नहीं आए थे। तो एहतजाज की कॉल तब भी जो इमरान खान साहब ने दी थी, इतने भरपूर तरीके से दी थी, तब भी लोग नहीं निकले थे। लेकिन उनकी जो सोच थी उस वक्त, वो क्या थी, वो तब की सोच और आज की सोच? सोच जो है वो अवाम की सोच तो वही है जो उस वक्त उनकी सोच थी कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, महंगाई हो रही है, हुकूमत चोर है, करप्शन हो रही है। और वही आज भी अवाम कह रहे हैं कि बिल्कुल करप्शन हो रही है, बल्कि रेट बढ़ गया है, और टैक्स जो है वो अवाम दे नहीं रहे, क्योंकि एक ईमानदार ने आना था और अवाम ने कतारों में खड़े होकर टैक्स जमा कराना था, लेकिन अब टैक्स जमा नहीं हो रहा। वो ईमानदार जो है वो टैक्स लेने में नाकाम हो गया। तो अब उसने ये तरीका ढूंढा है जो पिछली हुकूमतें ढूंढती रही हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे करो, उसके ज़रिए से चाहे बिजली के ऊपर टैक्स हो, चाहे इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें बढ़ा के आप उसके ऊपर टैक्स लगा दें। आप देखें कि अभी ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने टैक्स रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 55 से 58
100 ارب جو ہے اس کے قریب لے کے جانا ہے، اور 6,000 کا ٹارگٹ آگے رکھا ہوا ہے انہوں نے اگلے سال کا. تو اب یہ ریونیو جو بڑھ رہا ہے، جس کا روز عمران خان صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ریونیو بڑھ رہا ہے، تو ریونیو آپ کیسے بڑھ رہا ہے؟ ذرا اس کا انالیسس تو کریں. کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا ہے؟ کون سے نئے جو ہیں فائلر بنے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا ٹیکس دینا شروع کر دیا؟ وہ عوام کے سامنے وہ بریک اپ رکھے نا، سامنے آئے، تاکہ پہلے اگر 2200 تھے، 24 لاکھ تھے، تو اب کتنے ہو گئے ہیں، تو اس سے بتائیں عوام کو. ہوا یہ ہے کہ اگر 2% ٹیکس جو ہے وہ گھی کے ڈبے پہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ پہلے 170 کا تھا اب 400 کا ہو گیا ہے، تو 2% ٹیکس تو مل رہا ہے حکومت کو. اسی طرح سے امپورٹس کے اوپر جتنی مالیت کی کوئی چیز ہے اس کا ٹیکس جو ہے اس کی پرسنٹیج کے حساب سے ہے، تو وہ پرسنٹیج تو بڑھ گئی. یعنی آپ نے پوری مہنگائی کر کے ہر چیز کی قیمتیں بڑھا کے عوام سے اسی پرسنٹیج سے ٹیکس لیا، اور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ریونیو بڑھا دیا. کون سا کاروبار جو ہے بڑا ہے؟ کون سی ایکسپورٹس جو ہے؟ اگر ایک تو مسئلہ یہ پاکستان کی تحریک انصاف کا کہ ہر جو بات ہے وہ کہتے ہیں جی تاریخی ہے. تحریک انصاف کے دور میں تاریخی گندم کی پیداوار ہوئی ہے، چاول کی پیداوار ہوئی ہے، مکئی کی پیداوار ہوئی ہے. تو آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں 1947 سے لے کے آج تک کی، کہ ہر سال جو ہے پیداوار بڑھی ہے، ہر سال اریگیٹڈ ایریا جو ہے وہ بڑا ہے، اور آبادی جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، جو کہ ایک بڑا خوفناک پہلو ہے. اور دالیں جو ہیں، اس طرح کی بہت ساری اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں. گندم چاول جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی دور حکومت میں بڑا ہے، تو وہ پچھلے حکومت میں بھی بڑا. آپ نے جو کہا بالکل ایک میک سینس لاجک ہے کہ جی کس طرح سے ٹیکس کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کس طرح سے ہو گیا، کیونکہ کموڈیٹیز کی پرائسز اوپر گئی ہیں اور اسی پرسنٹیج کے حساب سے ٹیکس جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. پی جے میر صاحب، گورنمنٹ میڈیا کو بھی مافیائی کہتی ہے، ایک آدھ مرتبہ میں نے بھی سنا ہے، شاید آپ نے زیادہ مرتبہ سنا ہو، اور اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں حکومت پہ تنقید ہی ہو رہی ہے. تو شاید کوئی آپ کے لیے ممکن ہو کوئی اچھی بات ان کے حق میں کرنا، کوئی تعریف ان کی کرنا، کیونکہ ویسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں یہی بات عمران یعقوب صاحب آپ کے لیے. پی جے میر صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، یہی سوال آپ کے لیے. علی، بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں نا میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں کیا ان کی تعریف کروں. احمد ولید ابھی جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ فصل تو ہر سال بڑھتی ہے، کیونکہ آپ کا اریگیٹڈ ایریا بھی بڑھتا ہے، کیونکہ اب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بیج آ گئے ہیں، لوگوں کو کلٹیویشن کا پتہ ہے. بڑی اچھی بات ہے، فصل بمپر کراپ ہوگی آپ کی، لیکن کیا بمپر کراپ کے بعد آٹا سستا ہوا؟ ایک عام آدمی کو تو اس سے سروکار ہے کہ اس کو جو روٹی ہے وہ 8 روپے میں ملے گی کہ 12 روپے میں ملے گی. اگر آپ اتنا مہنگا کر دیں کہ ایک عام آدمی کے لیے روٹی، دیکھیں غریب آدمی نے اپنا پیٹ صرف روٹی کھا کے بڑھنا ہوتا ہے. اگر اس بیچارے کو 3 کی بجائے 2 کرنی پڑ جائے یا 2 کی بجائے 1.5 کرنی پڑ جائے تو وہ کہاں کی اسے کیا. چلیں اگر تعریف کی بات کریں عمران صاحب، تو یہ تعریف تو خیر بنتی نہیں ہے کیا کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اس سے وہی تمام لوگ جو سرکاری ہسپتالوں میں جاتے تھے علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جانے کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے، یا جس طرح آج شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں پر کوئی بیمار ہے تو اس کو کسی ڈاکٹر سے دوا لا کر گھر پہ ہی بٹھا دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی پوچھتا تھا تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے دوا دی ہے انشاءاللہ آرام آ جائے گا، جبکہ ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اگر صحیح علاج نہ کروایا گیا تو موت واقع ہو جائے گی. لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ غریب تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اب وہ صحت کارڈ کی وجہ سے جا کر انہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، صحت کارڈ اچھا انیشیٹو ہے، لیکن مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ 400 ارب روپیہ آئے گا کہاں سے؟ یہ ایک نیا سکینڈل تو نہیں آ جائے گا، نیا ایک دیوالیہ تو نہیں، انشورنس کمپنیاں یا پرائیویٹ اسپتال تو نہیں بند ہو جائیں گی؟ کیا آپ کے پاس 400 ارب روپے ہیں ان کو دینے کے لیے؟ پہلی بات، اور یہ بڑا اہم سوال ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ انیشیٹو ہم مانتے ہیں صحت کارڈ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، لیکن آپ اس کو کریں. کیا آپ ان 400 ارب روپے خرچ کر کے سرکاری اسپتالوں کو بہتر نہیں کر سکتے تھے؟ چلے اب اگر یہ کیا ہے تو اس کے لیے فنڈ بھی اس طرح سے مختص کریں کہ یہ بند نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ضرور تعریف کرتے ہیں، میڈیا مافیا نہیں ہے، لیکن میڈیا ایک آئینہ ضرور ہے. ہم اب جو حالات ہیں سامنے اسی کے مطابق بات کریں گے نا. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی بڑھائیں گے، ٹیکس لوگوں کی بالواسطہ ٹیکس لے کے انڈائریکٹ ٹیکس لے کے لوگوں کا جینا محال کر دیں گے،
700% तक दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं पिछले 3 सालों में। मुझे अब ये बताएं, शुगर ब्लड प्रेशर हर घर में, कोई घर पाकिस्तान का बताएं जिसमें शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट ना हो। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो कहते हैं कि इतनी महंगी दवाइयां हो गई हैं कि हम दवाइयां ही अफोर्ड नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ मीडिया से वाबस्ता, जो कहते हैं जी हमने 2 टाइम की दवाई खत्म कर दी, हम एक वक्त लेते हैं। आपने ये जो मीडिया के नुमाइंदों की बात की है, पीजे मीर साहब, आज आप गालिबन फवाद चौधरी साहब की उस तकरीब में मौजूद थे जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने शायद मीडिया के नुमाइंदों के लिए भी कहा कि सेहत कार्ड वो भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, सेहत कार्ड एक बड़ा। और साथ में जरा ये भी पीजे मीर साहब बताइएगा कि डू यू थिंक द गवर्नमेंट थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इज कन्विंस कर पाती है? लाइक जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने आप सबसे बात की, तो वाज ही कन्विंसिंग? देखिए, कोई गवर्नमेंट जब इस तरह के जब जो आप कह लो कोई इकोनॉमिक एक आप कह लो कि प्रॉब्लम में आती है, ये सारे इधर उधर हो जाते हैं। मैंने पीपल्स पार्टी में देखा है, मैंने PMLN में देखा है, और मैं आज इसमें PTI में देख रहा हूँ। आपका बड़ा ये एक बुनियादी सवाल है कि ये कहाँ होते हैं, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते प्रॉपर्ली कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम अली ये है कि जब आप गवर्नमेंट में नहीं होते हैं तो 2 ट्रक चलते हैं। एक ट्रक है एहतजाज का और एक ट्रक है उम्मीद का। ये ट्रक किराए पे गवर्नमेंट जब अपोजिशन में होती है उसके पास जाता है, और जो उस वक्त भी गवर्नमेंट होती है जब ये अपोजिशन में आते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ट्रक, उम्मीद भी देते हैं, एहतजाज भी होता है, हर चीज होता है। आप अपने सिस्टम को अक्रॉस द बोर्ड उसी वक्त ठीक करेंगे कि जब आपकी जो तनख्वाहें हैं ये बढ़ेंगी। आपके जो गरीब, जिनके हम बड़ी नारे लगाते हैं गरीबों को, गरीब एक टाट वाले स्कूल पे जाता है, उसका टीचर एक बिल उसी लेवल का होता है। आप उस बच्चे को कहेंगे कि ब्लू चिप कंपनी में जाके काम करो, उसको तो कोई हायर नहीं करेगा। अच्छा जी, चलो अब वो बच्चा जिस तरह बड़ा हुआ वो एक चौकीदार बन जाएगा, गार्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा, उसका लेवल फ्यूचर वही रहेगा। और ये हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। आपका सिलेक्टेड बच्चा है, उसके पास पैसा है 50,000 रुपया, लाख रुपया, वो फीस दे सकता है। और भाई पहले फीसें कम करो, फीसें फ्री करो। जब करोगे गरीब का बच्चा भी उधर आकर पड़ेगा, और फिर आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में दोगे, फिर आपका सोसाइटी का नेटवर्क आगे बढ़ेगा। बल्कि पीजे मीर साहब, आप नहीं समझते कि ये सेहत कार्ड के साथ साथ कोई तालीम कार्ड भी होना चाहिए? यही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब जाके कह रहे हैं कि इलाज करवा पाए, तो आपने भी ये सेहत की और गरीब के बच्चे की पढ़ने की बात की, तो गरीब का बच्चा भी जाकर उन अच्छे स्कूल्स में पढ़े। वेल सेड, दैट्स अ गुड आइडिया। यस, आप तालीम कार्ड दो। आप एजुकेशन पे जितना जोर डालोगे आपकी कौन बढ़ेगी, वरना गरीब गरीब रहेगा। ये जो नारा हर गवर्नमेंट लगाती है, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर होगा। और अमीर का देखो, वो मेहनत करता है, पैसा पैसा बनाता है, सिंपल एज दैट। अब हम अमीर जो बना रहे हैं, हम उसको भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अमीर को तुम टैक्स करो, गरीब को तुम टैक्स देश में लेके आओ, और साथ ही गरीब को वो फैसिलिटी दो कि जो कि किसी ने नहीं दी। मेरा ख्याल है एक ही वक्त था वो चौधरी परवेज लाई के कि जब इन्होंने ये गरीबों को पकड़ते थे रोड से, उनको पैसे भी देते थे और जाके कहते थे पढ़ो जाके। आप इनको पढ़ाओगे, इनकी स्किल जो आपकी एबिलिटीज है बढ़ेंगी, आपकी सोसाइटी लिटरेट होगी। और लिटरेट सोसाइटीज प्रोग्रेस, नॉट इलिटरेट सोसाइटीज। देखो ना, आप और मैं जाएंगे अली, कोई भी चला जाएगा, जिस गवर्नमेंट का हो या जिस पार्टी का, हमें उसको 1000 रुपया देना है, वो हमें वोट दे देगा। अगर हमने मुल्क को और आवाम को इस बेसिस पे चलाना है, ऑन अ शॉर्ट टर्म एडहॉक बेसिस, आपका मुल्क नहीं, आपका स्टेट ही तरक्की नहीं करेगा। सो वी नीड टू बी थिंकिंग ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड लॉन्ग टर्म। ठीक, लॉन्ग टर्म सोचना है एंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हमें जो एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद व्हेन वी कम बैक, हम ये -1 पे जो बात हो रही है, ये इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अहमद वलीद साहब, -1 की जो बात हो रही है, ये सिर्फ क्या ख्वाहिशात हैं या वाकई इसमें कुछ हकीकत भी है, या फिर कुछ लोग वो सदारती निज़ाम की भी बात हो रही है? मैं पिछले दिनों में देख रहा था, ट्विटर पे किसी ने लिखा था जी अगले 24 घंटे बड़े आम हैं, तो मैं कि ये तो खैर वो सनसनीखेज बात है, लेकिन क्या कुछ ऐसा चल रहा है?
देखिए कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, वो आगे कामयाब होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन टेंशन पाई जा रही है हुकूमत की सफ़ों में, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और सारे वज़रा जो हैं उनके आप चेहरे भी देखें तो उनसे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई टेंशन प्रिवेल कर रही है। अपने आप को वो किसी न किसी हद तक कोई ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जस्टिफाई कर सकें कि हम अगला 1.5 साल है उसमें हम कोई कारकर्दगी शो करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन का मसला होगा कि अपोजिशन किस तरह से यूनाइटेड होके तो डिसाइड करती है कि हाँ जी अगर नो कॉन्फिडेंस लानी है तो विद इन द पार्टी कोई किसी और को नामजद करना है वजीर आजम के लिए, या कोई अपोजिशन की किसी पार्टी के ऊपर एग्री करना है, तो ये एक मुश्किल काम है जिसके लिए अपोजिशन को खास तौर पर अपनी स्ट्रेटेजी आपको दोनों में से किस चीज के ज्यादा होते हुए चांसेस नजर आ रहे हैं, -1 के या सदारती निजाम के, या दोनों ही नहीं, जिस तरह शेख रशीद साहब आज कह रहे थे कि जी अप्रैल के बाद सब ठीक हो जाएगा? देखिए सदारती निज़ाम जो है वो इतना आसान नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है कि जी एकदम से हम सदारती निज़ाम की तरफ चले जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल काम है। विद इन द पार्टी कोई अगर चेंज आनी है, विद इन द पार्लियामेंट जो हुकूमत चेंज करके प्राइम मिनिस्टर कोई और लाना है, वो पार्टी ने खुद डिसाइड करना है। अगर अपोजिशन जो है वो ये कामयाब हो जाती है कि जितने एलाइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि उनको वो अपने साथ मिलाएं और फिर इंश्योर करें कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मूव करें तो वो कामयाब भी हों, तो उसी सूरत में ये कामयाबी मिल सकती है। या पार्टी के अंदर से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने और उसके बाद, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है बिल्कुल वाज़ेह होगी जब कोई पोजीशन जो है इस तरह की सामने स्ट्रांग नजर आ रही होगी और अपोजिशन जो है वो एक पेज पर होगी। अगर वो एक पेज पर नहीं होगी, अगर पीपल्स पार्टी कुछ और चाह रही है, एन लीग कुछ और चाह रही है, मौलाना जो है वो कुछ और चाह रहे हैं, तो फिर इस तरह से मामला जो है वो सामने नहीं आ रहा कि आखिरी जो 1.5 साल रह गया है तो उसमें कोई ऐसी बड़ी चेंज आए। क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके तो बिल्कुल वाज़ेह है उनकी पॉलिसी कि वो ये समझते हैं कि ये जो जितना भी बैलून था, जो बबल था, उसको बस्ट होने दें, इसको हुकूमत जो है वो कंप्लीट करने दें। अगरचे जो अपना मरियम है उन्होंने ये रिसेंटली कहा है कि हम हुकूमत को घर बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रांग लग नहीं रहा अभी तक। इतना स्ट्रांग इमरान साहब आपको लग रहा है कुछ ऐसा होगा, या वो फिर कहते हैं ना कि जी अगर ऑपोजिशन पे डालना है तो कहते हैं ना कि जी तुमसे नहीं हो पाएगा? देखिए 2-3 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो इस वक्त मार्केट में। एक वो जो आपने कहा सदारती निजाम की, तो सदारती निजाम के लिए आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और अभी मैं नहीं समझता कि असेंबली में या सेनेट में ये पोजीशन हो, कोई भी जमात ऐसी इस पोजीशन में हो कि वो आइन में इतनी आसानी से तरमीम हो जाए और सदारती निजाम आ जाए। अब आ जाते हैं दूसरा, हालांकि बड़ी पुरानी ख्वाहिश है और कोशिश है कुछ लोगों की कि इस मुल्क में सदारती निजाम आ जाए। अब आ जाते हैं दूसरी बात -1 फार्मूले की। -1 की बात क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि कुछ ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो इमरान खान साहब की हमेशा मददगार थे, जिनकी मदद से इमरान खान साहब वजीर आजम मुंतखब हुए थे, जिनकी मदद से आप जो अभी एलाइज की बात हुई, जितने इत्तेहादी हैं उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट की, वो इमरान खान साहब की कारकर्दगी से इमरान खान साहब इन 3.25 साल 3.5 साल के दौरे हुकूमत से शायद उस तरह से खुश नहीं हैं। वो दोस्त शायद ये समझते हैं, या कुछ लोगों की तरफ से, कुछ हल्कों की तरफ से उन दोस्तों को भी मूल इल्जाम ठहराया जा रहा है कि आपकी चॉइस जो है वो ठीक नहीं थी, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। लिहाजा वो ये सोच रहे हैं कि एक विद इन द पार्टी एक ऐसी चीज हो जाए, लेकिन इसलिए ये जरा मुश्किल काम है कि पीटीआई जो है वो माइनस इमरान खान, उसकी मैं नहीं समझता कि उस तरह से कोई हैसियत रहे, क्योंकि पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो है उनकी शख्सियत की बिना पे खड़ी है, उसके अलावा कोई मुझे वन मैन पार्टी है, वन मैन पार्टी। बिल्कुल ऐसा ठीक, मैं प्रोग्राम को जी क्लोज भी हमें करना है। मैं चाह रहा था पीजे मीर साहब आपसे भी क्लोजिंग कमेंट इसी पर -1 पे जो बात हो रही है इस पर अपनी राय दे दीजिए प्लीज। देखिए जी, ये मेरे भाई ने अच्छी बात की है। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वन मैन पार्टीज हैं तमाम। आप इमरान को छोड़ दें, बिल्कुल सही बात है। इमरान, पीटीआई विदाउट इमरान इज जीरो, नून विदाउट नवाज शरीफ इज जीरो, पीपल्स पार्टी विदाउट द भुट्टोज इज जीरो, एएनपी विदाउट द अली खान जो कनेक्शन इज जीरो, और एमक्यूएम एक है कि जिसके अंदर आपने हटाने की कोशिश की है, बट ही स्टिल रूल्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स।
क्वेश्चन आता है कि ये हमने ये -1 का हर जगह हम लगा देते हैं, तो यार ये क्या कंस्पिरेसी थ्योरीज में हम चलते हैं। एक हम नारा लगाते हैं जमहूरियत, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है डिक्टेटरशिप से। दूसरा, कहीं को पॉलिटिकल या आप कह लो इकोनॉमिक का बुरहान आ जाता है तो वहां कहते हैं हुकूमत को हटा दो। हमारी जो प्रॉब्लम है आज, ये ऑपोजिशन का काम नहीं कर रही। इसको चाहिए रोबस्ट ऑपोजिशन हो, तकड़ी ऑपोजिशन हो। क्यों? कल अगर ये हुकूमत में आएंगे, इनके हाथ कुछ भी नहीं होगा और इनसे भी बुरा हाल होगा। तो आप रेक्टिफिकेशन करो, जहां आप समझते हो कि भाई अच्छी चीजें हम मुल्क के लिए कर सकते हैं, पड़ जाओ गवर्नमेंट के पीछे। तनकीद बुराई तामीर, नॉट तनकीद बुराई तनकीद। आप ये करोगे तो जो सिटिंग जो कह लो गवर्नमेंट इन अपोजिशन है, जो वेटिंग है इन गवर्नमेंट, इसका फायदा होगा। लेकिन अगर आप इस तरह इनको उड़ाने की करोगे, आपके तो हाथ फिर में नहीं हो कुछ सकेगा। आना। ठीक, पीजे मीर साहब, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्रोग्राम को मुझे क्लोज करना होगा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे ज्वाइन किया। इमरान याकूब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद वलीद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के मान।